Hello, good morning, student. Today we have discussed about the bronchial tree and respiratory tree and structure of lungs. तो ये बात हम आज करेंगे आज के चैप्टर में। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि किस प्रकार से हमारा जो ट्रेकिया है, हाउ टू द ट्रेकिया आर डिवाइडेड इन द मेनी ब्रांचेज and how to form of the bronchial tree and respiratory tree in the wall of lungs, and what is the position of the lungs, and what is the situation of the lungs, what type of layer, what type of membranes are surrounded to the lungs. So that type of structures, that type of tree like structures and tubular structures are found इन दी आवर बॉडी, इन दी आवर लंग। तो इसकी हम बच्चों यहाँ आज स्टडी करेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि क्या यहाँ हमारा टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर है यहाँ ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। व्हाट डू यू मीन अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्री एंड ब्रोंकियल ट्री? तो दैट इज द ब्रोंकियल ट्री इज व्हेन द ट्रेकिया एंटर इनटू द thoracic cavity, it divide in two branches called as the primary bronchus. तो what do you mean about the primary bronchus? When the trachea, यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की that is a trachea in the thoracic cavity. The trachea also divided into form two structures. Right part of the branch is small, but the left part of the branch is a large and long branch. That is called the right bronchus, and that is called the left bronchus. The right side of the branch known as the right bronchus, and the left side of the branch that is called left bronchus. The first division of the trachea is called primary and secondary bronchus, or right and left bronchus. At the site of the bifurcate of the trachea, that is known as the carina region. Carina, okay. What do you mean about the carina? So that is called carina. Carina is a highly sensitive cells, highly sensitive part to the cough reflex. जब कई बार खांसी लेते हैं, कफिंग करते हैं तो ये जो ये रिफ्लेक्स कहाँ डेवलप हुआ? कोई भी डस्ट पार्टिकल और कोई अदर पार्टिकल जब हमारे ट्रेकिया के एंड पार्ट में यह पहुंचता है या कोई बैक्टीरिया पहुंचता है तो उसमें ये रिफ्लेक्स डेवलप होता है इस कैरिना पार्ट से, जिससे हम यहाँ पर प्रेशर के साथ में वो बाहर निकाल देते हैं उस पार्टिकल को। तो यू है अपन कह सकते हैं कि द कफ रिफ्लेक्स डेवलप फ्रॉम दी, आंसर आएगा यहाँ पर कि द कैरिना पार्ट ऑफ द ट्रेकिया दैट इज डेवलप कफ रिफ्लेक्स। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं ब्रोंकस को इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। The branches of primary bronchus up to terminal bronchioles make bronchial tree. So there are two type of tree found in our lungs. First is bronchial tree, then second is respiratory tree. What do you mean about the bronchial tree? The bronchial tree, first branches, bronchial tree start from the first dividation of the trachea and till or end of the bronchial tree, that is called terminal bronchiole. Then after further dividation of the terminal bronchiole, that start a special type of tree that is called respiratory tree. The respiratory tree word used due to the respiration or the gaseous exchange at that part. तो यहाँ हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ये बच्चों आपके यहाँ बात समझ में आई होगी। Then next is the terminal bronchioles divided to form respiratory bronchioles, and branches of respiratory bronchioles make respiratory tree. In bronchioles tree, the cartilage ring are present while these are absent in the respiratory tree, and the gaseous exchange occur in the respiratory tree while it is absent in the bronchial tree. So ये some differences are found in the bronchial tree and
रेस्पिरेटरी ट्री। इसी बच्चों में एक स्लाइड के द्वारा मैं अलग से यहाँ पर बता सकता हूँ कि यहाँ अपना जो ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री की बात कर रहे हैं। ब्रोंकियल जो ट्री है एंड हम कहेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्री जो है, इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या है? दोनों ही ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, बट दोनों में प्रॉपर डिफरेंसेस यहाँ पर किस प्रकार से अपन बताएंगे। तब देखिए बच्चों, यहाँ देखेंगे आप अपने पूरे अटेंशन के साथ में बोर्ड पर रहिए। अपना पूरा जो अटेंशन है, आप पूरा डेडिकेशन है, पूरा ड्यूरेशन है, पूरी आई कांटेक्ट है, वो बोर्ड के साथ में या अपनी स्क्रीन के साथ में रखिएगा, जिससे ये चैप्टर, ये टॉपिक अपन बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसमें आप देखिएगा बच्चों कि इनिशियल टाइम में मैं एक सिंगल ब्रांच बना रहा हूँ। इनिशियल टाइम में ये अपने पास में क्या था? ट्रेकिया था। यार ट्रेकिया को फर्दर डिवाइडेशन किया, इस प्रकार से ट्रेकिया है वो हमने यहाँ डिवाइडेशन किया ट्रेकिया का। फर्स्ट जो डिवाइडेशन है, इस डिवाइडेशन को हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। फर्स्ट टाइम द ट्रेकिया इन द thoracic cavity bifurcate at the site of the carina. That type of branch is called primary bronchi. There are two type of branch. First is a right branch and second is a left branch. The left branch is a long branch compared to the right branch of the primary bronchi. Inside of the wall of the trachea and a primary bronchi have some C-like ring that is called C-ring. The C-ring rings are formed by the hyaline cartilage, and the function of the C-ring which are prevent the collapsing of the trachea during inspiration and expiration or during breathing. तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हो। Then in the primary bronchi and the further dilatation of the primary bronchi, the form that is form secondary bronchi, tertiary bronchi and terminal bronchioles. So that is a branches of the bronchi. All type of bronchi or bronchial tree also have C ring, but that type of structure not a ring. The C ring, you look here, that type of structure is C ring. The C ring only found in the trachea, but then after the dilatation of the trachea, the C ring not a regular structure, it is irregular cartilaginous plate, like structure. So the C ring also convert into that is which type of structure? तो irregular cartilaginous structure, इसके अंदर यहाँ पर सी रिंग है वो कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि सी रिंग कहां तक प्रेजेंट होती है? तो सी रिंग यहाँ प्रेजेंट होती है ओनली ट्रेकिया तक। ट्रेकिया के बाद में जो फर्दर डिवाइडेशन है, मैं यहाँ एक डिवाइडेशन यहाँ बनाऊं आपके पास में, जो राइट पार्ट ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये यहाँ पर 3 ब्रांचेज के अंदर डिवाइड होगी, एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये यहाँ 2 ब्रांच के अंदर डिवाइड होगी। इस ब्रांचिंग को हम यहाँ पर कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। देन द ऑल सेकेंडरी ब्रोंकाई also dividation in the small tubular structure that is called tertiary bronchi। यहां तक जो डिवाइडेशन है, फर्दर डिवाइडेशन है, एक निश्चित ब्रांचेज के अंदर यहाँ पर डिवाइडेशन है, इसकी शाखाएं, इसकी ब्रांचें यहाँ फिक्स है। देन आफ्टर डिवाइडेशन यहां हम देखें, ये जो यहाँ डिवाइडेशन हो रहा है,
टाइप का डिवाइडेशन हो रहा है, इसको हम कहेंगे ब्रेंक्यूल्स। इसका नाम दे दिया गया बच्चों ब्रेंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। देन द ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइडेशन इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल bronchioles. From the primary bronchi to terminal bronchiole, that is a path or branching known as a bronchial tree or conducting zone. इस जोन को हम कहेंगे यहाँ पर कंडक्टिंग जोन। ध्यान रखिए बच्चों, कंडक्टिंग जोन जो वर्ड काम में लिया था, तो यहां तक के जो ब्रांचिंग हो रही है इसको हम कहेंगे यहाँ पर कंडक्टिंग जोन कहेंगे। Then second type of question यहाँ पर the examiner can be asked in the coming exam। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो सीरिंग है यहाँ पर, ये जितनी भी सीरिंग है, क्या इन ब्रांचिंग के अंदर सीरिंग प्रेजेंट होती है? तो आपका आंसर होगा यस, दे हैव ऑल्सो irregular cartilaginous ring, not a C-like ring, irregular cartilaginous ring in that type of tubules। तो इसके अंदर ये रिंग बच्चों प्रेजेंट होती है, बट कार्टिलेजिनस से इरेगुलर टाइप की रिंग होती है। इसे हम क्या कहेंगे? irregular cartilaginous plate, not a ring like structure, that is a plate like structure found in the terminal bronchioles। What is the function of the irregular cartilaginous plate or C-ring? तो यहां पर भी आप देखिए इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ड्यूरिंग ब्रीदिंग दे आर प्रिवेंटेड from the collapsing of the tubules like secondary, tertiary, bronchiole and terminal bronchiole। That type of tree known as a bronchial tree। यहां तक कि बच्चों जो स्ट्रक्चर्स बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ब्रोंकियल ट्री कहेंगे यहाँ। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर क्रिस्टल क्लियर नॉलेज, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द ट्री। नेक्स्ट हम आगे चले बच्चों। देन ब्रोंकियल ट्री ऑल्सो फर्दर डिवाइडेशन इन मेनी ट्यूब्यूल्स एंड बबल लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। दैट टाइप ऑफ ट्री दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्री। यहां तक बच्चों, यहां तक ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है यहां तक है, किसी जो गैसेज है उस गैसेज का यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, किसी प्रकार की यहाँ रेस्पिरेशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेज नहीं होता है, बट इसके अंदर भी एयर यहाँ फिलअप रहती है। इस एयर को हम कहेंगे, यहाँ जो एयर फिलअप है इस एरिया में, एयर जो फिल है, इस एयर के लिए एक वर्ड काम में लिया गया, इसे डेड एयर स्पेस, डेड एयर स्पेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये है वो बच्चों रेस्पिरेशन में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होता है। तो कंडक्टिंग जोन में जो एयर का स्पेस बनता है दैट इज कॉल्ड डेड एयर स्पेस, जिसकी वैल्यू 150 ml होती है। इसके अंदर हमेशा 150 ml गैसेज है वो फिल रहती है, और वह गैसेज ऐसा पार्ट है जो ब्रीदिंग में, जो रेस्पिरेशन में जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये यहां आपके समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट हमने आगे देखे, यहां पर एक स्लाइड और बनाए। यहां सेकेंड टाइप ऑफ ट्री हम कह रहे हैं यहां पर रेस्पिरेटरी ट्री। आपके पास में जो एक ट्री और बनता है, इस ट्री को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ट्री। तो रेस्पिरेटरी ट्री देखिए बच्चों, एक स्मॉल ट्यूब है, ये स्मॉल ट्यूब है आपके पास में, ये स्मॉल ट्यूब है। ये कहां से आई? इसको हम कहते हैं टर्मिनल है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल ऑल्सो डिवाइडेड इनटू small tubular structure, many tubular structure, that is called respiratory bronchiole, respiratory bronchiole।
What do you mean about the respiratory bronchiole? Small teeny tubular structure are called respiratory bronchiole. They have not any type of C-ring or cartilaginous irregular plate. They do not have any type of cartilaginous ring or irregular type of plate. But the respiratory bronchiole also divided into the many branches, and that type of branches form a balloon-like structure that is called alveoli. The alveoli connect with the alveolar tube. Respiratory bronchiole, alveolar tube or alveolar duct and alveoli collectively form a tree-like structure. That type of tree is called respiratory tree. That type of part of the respiratory organs involved in the respiration or the respiratory gases exchange at that type of palace. But in this tubular structure and balloon-like structures, they do not have any type of anti-collapsing agent, anti-collapsing structures. तो यहां पर ऐसा बच्चों क्या होता है कि सी रिंग नहीं है, इसके अलावा अन्य स्ट्रक्चर्स भी यहां पर नहीं है, फिर भी इन ट्यूबुल्स का कोलैप्स नहीं होता. तो देखिएगा इन दिस पार्ट स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट. The surfactant secreted by the sclera cell in the respiratory bronchioles or alveolar duct. What do you mean about the surfactant? यहाँ special type of surfactant like a lecithin chemical. Lecithin is a phospholipid. The lecithin secreted by the sclera cell. Where is found of the sclera cell? The sclera cell found in the wall of the respiratory bronchiole and alveolar duct. And these type of cell secrete a chemical. This is called lecithin. Lecithin is a phospholipid and collectively, according to function, the lecithin known as a surfactant. The surfactant prevent to the collapsing. और the collapsing किसके लिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल को कोलैप्सिंग से यहाँ प्रिवेंट करता है, उससे यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग टाइम. तो ये बच्चों आप यहाँ पर इस बात को समझ चुके हैं, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गई आपके पास में कि यहाँ सी रिंग नहीं होते हुए भी ये कोलैप्स नहीं हो पाती है. क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इसके अंदर सर्फेक्टेंट लेसिथिन रिलीज होता है जो सरफेस टेंशन को कम करके और उसकी कोलैप्सिंग को बचाता है. अदरवाइज यहाँ पर इसके अंदर सरफेस टेंशन इतना ज्यादा होता है कि आपस में ये ट्यूब कोलैप्स हो सकती है. तो ये यहाँ एक स्ट्रक्चर बनती है, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज रेस्पिरेटरी ट्री. तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह बच्चों समझ गए होंगे कि क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्री. अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है. तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फिल इन दी ब्रोंकियल ट्री इज ए पार्ट ऑफ डेड एयर स्पेस. अभी आपको बताया था मैंने कि जो ब्रोंकियल ट्री और जो कंडक्टिंग जोन है, कंडक्टिंग जोन जो बनता है इसके अंदर जो पार्ट है वो एरिया है, दे डू नॉट
respire of the respiratory gases do not exchange of the gases at that part. So a part known as dead airspace या dead space volume which does not take a part in the gaseous exchange. The value of the dead airspace is 150 ml. There are two zones, conducting zone and respiratory zone. Conducting zone, what do you mean about the conducting zone and respiratory zone? तो हम यहाँ पर देखेंगे एक एरिया हम यहाँ नेजल पोर से हम देखें तो फर्स्ट टाइम में कंडक्टिंग जोन यहाँ देखें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, वहां से हम एयर ले रहे हैं. देन एयर कम इनटू द वेस्टिब्यूल एंड नेजल चैम्बर एंड देन इंटरनल लेरेज. फ्रॉम द इंटरनल लेरेज कम इनटू द नेजोफेरिंक्स, देन फेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स. From the glottis, the air come into the larynx, and larynx, from the larynx come into the trachea. From the trachea, that is start a tree-like structure that is called bronchial tree. Okay, from the bronchial tree, the air circulate, air transmit, that is called conducting zone. तो ये जोन जो है वो क्या कहलाता है यहाँ पर, कंडक्टिंग जोन. एक्चुअल में कंडक्टिंग जोन स्टार्ट फ्रॉम द नोस्ट्रिल. ड्यू टू फ्रॉम द नोस्ट्रिल द एनवायरमेंटल एयर कम एंटर into the nostril and conduct and circulate and transmit from the various part of the respiratory zone, various part of the respiratory organs, accessory respiratory organs, and come into the trachea. From the trachea they start bronchial tree. What do you mean about the bronchial tree? So we can say that from the trachea the bronchial tree will be started. The trachea further divided into the primary bronchus, then secondary bronchus, then tertiary or segmental bronchus, tertiary bronchus or segmental bronchus, and then the total pulmonary bronchioles and end of the bronchioles known as a terminal bronchioles. तो यहां तक का पार्ट है बच्चों क्या कहलाता है, इसको हम कहेंगे ब्रोंकियोल ट्री. देन also further divided into the respiratory bronchioles. The respiratory bronchiole divided into the alveolar duct, then atria or then alveolar sac, and the last part of the respiratory tree form a balloon-like structure that is called alveoli. How many alveoli present in the lungs wall? So there are in both lungs 300 million alveoli found in the wall of the lungs. That is called the air exchange zone or respiratory ट्री. तो इस बात से आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी, क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर सामने रखा गया है कि हमारे अंदर हमारे ट्रेकिया से और लंग्स के अंदर जो ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ डिफरेंट ये ब्रांचिंग किस प्रकार से हो रही है. तो इस बात को बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे. यहाँ देन नेक्स्ट यहाँ एक डायग्राम के द्वारा और आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये यहाँ ट्रेकिया है. इस ट्रेकिया को यहाँ एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, एक साइड की ब्रोंकस ली गई है, फिर प्राइमरी ब्रोंकस यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड किया गया है, फिर टर्सरी ब्रोंकस में, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल में डिवाइड किया गया है, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर सैक और लोब्यूल्स, और यहाँ हम कह सकते हैं एल्वियोलाई. इसके अंदर क्या है, एल्वियोलाई. तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टिंग जोन, और इसके नीचे का जो एरिया है इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी जोन. तो ये बात बच्चों हम यहाँ पर समझ चुके हैं. यहाँ आप देखिएगा क्लियर सी रिंग प्रेजेंट है, बट यहां तक क्लियर सी रिंग प्रेजेंट है, पर आगे यहाँ इररेगुलर ये रिंग हो जाती है. कार्टिलेजिनस ही है ये रिंग भी, लेकिन रिंग न होके प्लेट, छोटी छोटी प्लेट्स बन जाती है इसके ऊपर, तो इसे हम कहेंगे कार्टिलेजिनस. क्या, कार्टिलेजिनस लेजिनस इररेगुलर
इरेगुलर प्लेट। अब इसे अपन क्या नहीं कहेंगे, सीरिंग नहीं कहेंगे, काम वही कर रही है, कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रही है, कब ब्रीदिंग के टाइम यहाँ पर। तो इस टाइप से बच्चों हम यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं फिर इस डायग्राम के द्वारा कि कैसे यह ट्री बनता है। एपिथेलियम इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंकाई की स्टडी की हमने और ब्रोंक्यूल्स की स्टडी की, उसकी एपिथेलियम क्या है, किस प्रकार से एपिथेलियम बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ट्रेकिया के अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रेकिया की जो वाल है वो बनी होती है यहाँ पर सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो आप देखिएगा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से बच्चों ये फॉर्म रहती है कहां पर, ट्रेकिया की जो वाल होती है। अब इसके आगे चलेंगे तो सूडो स्ट्रेटिफाइड बदल जाएगी यहां पर सिंपल में, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। देन सिंपल फिर यहां पर कॉलमनर बदल जाएगी बच्चों सिंपल क्यूबोइडल के अंदर, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है यहाँ। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जोन है उसके अंदर तो एपिथेलियम की जो सेल्स है उसमें यहाँ पर चेंजेज यहाँ पर पाया जाता है। इस चेंजेज को, इस मॉडिफिकेशन को अपन डिफरेंट डिफरेंट जोन में कह सकते हैं यहाँ। तो सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ये यहाँ पर उपकला या एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होती है। आपके सामने एक ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स का डायग्राम लिया गया है कि यहाँ पर ये कॉलमनर टाइप की सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, स्ट्रेटिफाइड है। देखिए दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है इसलिए हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। इन बिटवीन दी सेल आप देखिए गॉबलेट सेल प्रेजेंट है। गॉबलेट एक ग्लैंड है जो म्यूकस से कंटिन्यू म्यूकस कॉट या म्यूकस रिलीज करती है। यहाँ इसकी सरफेस पे क्या है, यहाँ सीलिया प्रेजेंट है। ये सीलिया क्या कर रहे हैं, ट्रैप करते हैं कोई डस्ट पार्टिकल या अन्य अदर पार्टिकल है उसको ट्रैप करने का काम कर रही हैं और उसे बाहर भेजने का, एक्सपेल करने का काम कर रहे हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ बनती है। अब इसके बाद में आगे हम चलें तो अब आता है लंग्स की स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, how many lungs found in our body and what is the differences in between the right lung and left lung, and also we are studied comparative studies other than mammals like frog। हमने पहले भी बात की फ्रॉग लंग्स और हमारे लंग्स में डिफरेंसेस होते हैं। फ्रॉग लंग्स है वो अलग टाइप के है, बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं होते, नॉन फंक्शनल लंग्स होते हैं। हमारे लंग है वो फंक्शनल होती हैं। लंग्स ही हमारे अंदर बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट है बच्चों जहां दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ मसल्स। अपने लंग्स में, हमारे अंदर लंग्स में किसी प्रकार की कोई मसल्स नहीं होती है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द लंग्स लाइक इंटरकोस्टल मसल्स और रेडियल मसल्स। द रेडियल मसल्स आर फाउंड इन द डायफ्राम and the intercostal muscles are found in between the ribs. Both type of muscles helpful for the inhalation and exhalation। और अपन कह सकते हैं लंग्स के फूलने और लंग्स के यहाँ कंस्ट्रिक्ट होने में, करवाने में ये मसल्स हेल्पफुल होती है। खुद लंग्स के अंदर किसी प्रकार की यहाँ मसल्स नहीं पाई जाती है। और लंग्स की पोजीशन देखें कि वेयर इज द सिचुएशन ऑफ द लंग्स आर फाउंड इन द थोरेसिक कैविटी इन द मीडियास्टिनम स्पेस अपर साइड ऑफ द डायफ्राम। तो ये यहाँ लंग्स अपने अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्पंजी होती हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं यहाँ। तो ये एक स्ट्रक्चर्स है जिसकी स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और द रेस्पिरेटरी ऑर्गन है द लंग्स। लंग्स इज ए प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, PRO शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। लंग्स इज ए प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैंने कहा बच्चों आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे कॉर्डेट्स में
डिफरेंट एनिमल्स में टू टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मेनली प्रेजेंट है, एक गिल्स है और दूसरा लंग्स है। तो गिल्स कहाँ उपस्थित है बच्चों? गिल्स उपस्थित होती हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसके अंदर तो गिल्स होते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं बच्चों उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर लंग्स मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन है। दोनों का कंपैरिजन करें तो गिल्स आर मोस्ट एफिशिएंट कंपेयर to lungs due to the gills near about 80% oxygen absorbed from the water and the lungs only 4% oxygen absorbed from the air. So the gills are most efficient from the compared to the lungs. ये बात आप बहुत अच्छी तरह बच्चों समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ गिल्स ज्यादा एफिशिएंट है और क्यों लंग्स यहाँ कम एफिशिएंट है। तो आइए देखते हैं हम हमारे अंदर लंग्स की स्ट्रक्चर। लंग्स कितनी होती हैं? तो वन पेयर ए पेयर लंग्स ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन दी थोरेसिक कैविटी। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स आर कवर्ड बाई ए डबल मेम्ब्रेन। lungs, very important statement, lungs are covered by a double membrane, outer membrane or inner membrane, that is called pleural membrane. Outer pleural membrane called as parietal pleural membrane, inner membrane known as the visceral pleural membrane. Both are embryonic, originated from the mesoderm. बात समझ में आई? यहाँ पर एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ये डेवलप होती है, विच आर कॉल्ड दी प्लूरल मेम्ब्रेन। एग्जामिनर कैन बी फ्रेम दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दी कमिंग एग्जाम अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बच्चों प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देन outer membrane is the pleural parietal pleura, then inner membrane is called visceral pleura. Both these membranes are derived from the mesoderm. ओके बच्चों, किससे डेवलप हो रही है? मेसोडर्म से डेवलप हो रही है ये, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। इन बिटवीन दी बोथ मेम्ब्रेनस a very narrow cavity called as pleural cavity is present. तो ये यहाँ हम बता सकते हैं इस प्रकार से, in the cavity a very thin layer of the pleural fluid is present, about 150 ml fluid are present in between the membrane. Sometime due to bacterial infection the amount of this fluid is increase. कब? जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर हो जाए। So the organism feel a difficulty in the breathing. This is called the dyspnoea. Dyspnoea meaning difficult breathing due to the bacterial infection in the pleural fluid. So the pleural fluid increase in the cavity, so the breathing will be difficult. तो इस प्रकार से आप यहाँ कह सकते हो कि प्लूरल फ्लूइड है उसका एक बड़ा योगदान होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज टर्म एज दैट टाइप ऑफ डिजीज दैट इज कॉल्ड प्लूरिसी और प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। प्लूरिसी और प्लूरल इफ्यूजन डिजीज, ये क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया जा सकता है कि प्लूरल इफ्यूजन डिजीज, द कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन डिजीज इन फ्यूचर। यहाँ तो आप क्या कहोगे? ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा आपसे क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया जा सकता है कि प्लूरल जो इफ्यूजन डिजीज है उसमें प्लूरल फ्लूइड है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? आपका आंसर होगा यहाँ पर इंक्रीज होता है, जिससे डिस्नोइया हो जाता है, जिससे डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, पेनफुल ब्रीदिंग होती है। यहाँ in human being the right lung made up of 3 lobes and the left lung made up of 2 lobes. ओके, यहाँ तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन सी लोब या कैसे यहाँ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो डायग्राम के द्वारा हम यहाँ बता सकते हैं कि लंग्स की स्ट्रक्चर क्या है। देखिएगा,
यहां पर जो लंग्स है हमारे अंदर, नंबर ऑफ लंग्स कितनी है? 2 है। कहां प्रेजेंट है? तो आप कहोगे यहां थोरेसिक केविटी है, इस केविटी के अंदर बच्चों ये लंग्स प्रेजेंट है। डायग्राम के द्वारा हम देखें तो ये देखिए ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया इस प्रकार से डिवाइड होता है और राइट लोब और लेफ्ट लोब यहां पर बनती है। इसे फिर हम यहां पर डिवाइड करें, इसके चारों तरफ यहां पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से यहां लंग प्रेजेंट है। तो ये लंग है, इसको लंग को अपन कहेंगे राइट लंग। देन सेकंड टाइप ऑफ लंग है, इसे हम कहेंगे लेफ्ट लंग। ओके, राइट लंग है वो ब्रॉड होता है, जबकि लेफ्ट लंग है वो थिन होता है। यहां इसे लेफ्ट लंग के अंदर एक स्ट्रक्चर और होती है, इस स्ट्रक्चर को हम यहां पर देखेंगे। आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है लेफ्ट लंग में। उस स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रक्चर है? इस प्रकार से एक नोच प्रेजेंट होती है। इस नोच को हम कहेंगे कार्डियक नोच। कार्डियक नोच कहेंगे। क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया जाता है, वेयर इज द सिचुएटेड ऑफ द कार्डियक नोच? द कार्डियक नोच फाउंड इन द लेफ्ट लंग। द टर्म यूज कार्डियक नोच, व्हाई? आंसर होगा इन बिटवीन बोथ लंग द heart is located and the left part of the heart embedded into the left lung and form a notch like structure that is called cardiac notch. इस बात को हम यहां बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ गए। अब देखिए इसी लंगे के चारों तरफ यहां पर सराउंडिंग में, यहां देखिए इसके चारों तरफ यहां पर एक लेयर होती है। यहां इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक लेयर है, एक लेयर ये है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है। आउटर साइड में जो लेयर है इसको हम कहेंगे आउटर प्लूरल लेयर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। देन इनर साइड में जो लेयर है इसे कहेंगे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। In between both membrane found a space that is called pleural cavity. The pleural cavity filled by the pleural fluid. ये स्ट्रक्चर बच्चों इन दोनों लंगे के चारों तरफ इस प्रकार से होती है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब आप देखिए when any type of bacterial infect in the pleural fluid or in the pleural membrane, the pleural fluid will be increased due to infection of the bacteria. अब ये इंक्रीज होने से क्या दर्द होगा, पेन होगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे एक डिजीज डेवलप होगी। इस डिजीज का नाम दे दिया गया प्लूरेसी डिजीज। प्लूरेसी डिजीज कहेंगे इसे, प्लूरेसी डिजीज। और प्लूरेसी इफ्यूजन डिजीज भी इसे कहते हैं। यहाँ ये बच्चों ही आपके यहाँ इस टाइप के लंग की स्ट्रक्चर है। ट्रेकिया यहाँ बता सकता है, इस ट्रेकिया के अंदर क्या है, इस प्रकार से सी रिंग प्रेजेंट है और इसके बाद में ये रिंग है वो इरेगुलर हो जाती है। और यहां पर ये कैरिना है जो कफ रिफ्लेक्स डेवलप करता है। ये जो लंग है, इस लंग को हमें 3 रीजन में, 3 पार्ट में यहां पर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल और फीसर और ऑब्लिक फीसर 2 टाइप के फीसर्स है। इसमें लंग नंबर 1, लोब नंबर 1, लोब नंबर 2
और लोब नंबर 3 एंटीरियर लोब, मिडल लोब और इनर लोब और पोस्टीरियर लोब यहां कह सकते हैं। तो राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 lobes, but the left lung divided into only 2 lobes, lobe number 1 or lobe number 2. According to lobe, the primary bronchi also divided into the according to number of lung lobe, the right primary bronchi divided into 2 secondary bronchi, primary bronchi, that is called secondary bronchi. How many number of secondary bronchi in the left lung? So there are 2 in number found in the left lung. What is the secondary bronchi? In the right side of the lung, the primary bronchi divided into 3 bronchi, that is called secondary bronchi. Secondary bronchi, yeah, bronchioles. So how many number of secondary bronchioles in the right lungs? So 3 secondary bronchioles are found in the right lungs. A total number of bronchioles 3 plus 2 is equal to 5 bronchioles. Second, how many bronchioles? Which bronchioles? So secondary bronchioles. Secondary bronchioles. प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के नंबर यहां पर आपसे पूछे तो यहां पर ओनली 2 है। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स के नंबर आपसे पूछे यहां पर तो आपके आंसर हो जाएगा यहां पर ओनली 5 नंबर है वो बच्चों यहां पर प्रेजेंट है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पर एक लंग्स की हम स्टडी कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, इसके नीचे लंग्स जो है इसके ठीक नीचे आप देखोगे कि इस प्रकार से एक और स्ट्रक्चर इसको बेस दे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये ऐसी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहां पर डायफ्राम। डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन में ये जो डायफ्राम है वो इसका शेप है वो डोम शेप होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड द डायफ्राम शेप इज, आंसर होगा डोम शेप प्रेजेंट ड्यूरिंग दी रिलैक्सेशन पीरियड। तो ये बच्चों यहाँ बेटा जी की ये बात आपके समझ में आई कि किस प्रकार से एक लंग की स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर होती है जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। देन हम देखिए एक और स्ट्रक्चर के द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे जो एनसीईआरटी का डायग्राम में आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। इस डायग्राम के द्वारा हम बता सकते हैं फिर भी कि ये जो है ऊपर देखिएगा बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया गया जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इसके नीचे ट्रेकिया एक ब्यूटीफुल यहाँ क्लियर क्रिस्टल क्लियर डायग्राम है जिसके ऊपर ट्रेकिया एक लॉन्ग ट्यूब है 10 to 12 सेंटीमीटर की एक ट्यूब है जो थोरेसिक रीजन तक जाती है यहाँ। और यहाँ देखिए कि इसके ऊपर एक क्लियर यहाँ रिंग है, छल्ला दिखाई दे रहा है। ये छल्ला रिंग जो सी रिंग है ये इसको हम कहेंगे सी रिंग, देख सकते हैं बच्चों यहाँ आप देखिएगा ये सी रिंग है वो डिवाइडेड हो रही है 2 पार्ट में। यहाँ 2 फर्दर डिवाइडेशन यहाँ हो रहा है। बीच में यहाँ हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट का हल्का सा पार्ट है वो एम्बेडेड इनटू द लेफ्ट लंग जिससे क्या बन रही थी, कार्डियक नोच यहाँ पर बन रही थी। यहाँ आपको भी बताया कि कार्डियक नोच का डेवलपमेंट होता है। अब इसमें और देखिए बच्चों की ये लंग है, राइट लंग है। ये राइट लंग है, मैंने कहा 3 रीजन में डिवाइडेड है, 3 लोब में यहाँ पर डिवाइडेड है। ये लेफ्ट लंग है जो यहाँ 2 लोब में डिवाइडेड है। लेफ्ट लंग के अंदर ये ब्रांचिंग दिखाई गई है, ब्रोंकियोल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ आउटर साइड ऑफ द लंग है वो सराउंडेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन। ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और ये लेफ्ट या इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। इन बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड ए स्पेस, फाउंड ए स्पेस दैट इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस व्हिच इज फिल्ड बाय द pleural fluid. The surrounding of the lung completely, the surrounding of the lung in the laterally what type of structure? तो आप कहोगे यहाँ पर ribs are found, तो इसे हम कहते हैं कट एंड ऑफ द रिब्स। तो ये कट ऑफ द रिब्स है, ये या लंग्स स्ट्रक्चर दिखाई गई है। एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लंग्स कवर्ड बाय
diaphragm. Diaphragm, it is a very important structure for during breathing, due to have a special structure, special muscles that is called phrenic muscles or radial muscles. The 75% involvement in the respiration or breathing. ये यहाँ एक डिटेल स्ट्रक्चर आपके सामने रखी है, एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों ये, और ये एक्चुअल में पूछा जाता है, इसकी लेबलिंग पूछी जाती है कि कैसे यहाँ पर ये लंग्स बनते हैं, कैसे लोब्स बनती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें इसका। यहाँ एक टेबल से आपको दिखाया गया है डिफरेंस बिटवीन दी ह्यूमन लंग्स। तो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। राइट लंग्स है, इसका वेट होता है 6 to 5 ग्राम, 625 ग्राम। तो लेफ्ट लंग का वेट होता है 575 ग्राम। यहाँ फर्स्ट यहाँ डिफरेंस यही है कि ये हेवी होता है और उसका लाइट वेट होता है, इसका हेवी वेट होता है कंपेयर टू। The right lung divided into 3 lobes and the left lung also divided into the 2 lobes. First is the anterior lobe, middle lobe and posterior lobe. And in the left lung have only 2 lobes, the left anterior lobe and left posterior lobe. We can also said the right anterior lobe, middle lobe, right middle lobe and right posterior lobes. Then अब यहाँ पर हम एक लंग्स की और डिटेल देख सकते हैं कि ये यहाँ राइट लंग की लोब दिखाई गई है। राइट लंग्स के अंदर आप देखें कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। यहाँ अपेक्स ऑफ द लंग्स है, टिप ऑफ द लंग्स है एंड द फर्स्ट लार्ज लोब नोन एज द सुपीरियर लोब। सुपीरियर लोब इन बोथ टाइप ऑफ लंग है, यहाँ इसकी भी सुपीरियर लोब है, ये इसकी भी सुपीरियर लोब है। बट इन दी राइट लंग वी कैन टॉक अबाउट द right lung, they have 2 type of fissure. First fissure is the horizontal fissure, then second fissure is the oblique fissure. The horizontal fissure and oblique fissure form a small middle lobe that is called right middle lobe, and the last lobe is called posterior lobe or inferior lobe of the lungs. So in the left lung only single type, one type of fissure present. What is the name of the fissure? That is called oblique fissure. But in the right lung have 2 type of fissure, oblique fissure or horizontal fissure. So 2 type of found of fissure in the right lungs, that is divided into the 3 lobes, and only 1 type of fissure found in the left lungs, so divided into 2 type of lobes, upper lobe and lower lobe. Also we can say that superior lobe and inferior lobe. तो इस प्रकार से ये लंग्स की स्ट्रक्चर्स है यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये राइट साइड की स्टडी बताई गई है और ये लेफ्ट साइड से इसका साइड पोज लिया गया है। तो ये बच्चों आपके यहाँ पर समझ में आया कि किस प्रकार से राइट लोब और किस प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट लोब है, उसको हम यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने क्या देखा, हमने आज ब्रोंकियल ट्री। टुडे वी विल discuss about the very important topic, discuss about the very important topic like bronchial tree, respiratory tree, and the outer structure of the lungs, and the lungs how to divided into the main lobes, the right lung as well as left lung. There are 2 type of fissure also found in the lungs, right lungs, the oblique fissure and horizontal fissure. But in the left lung only single type, 1 type of fissures present, that is called oblique fissure. तो ये बच्चों हम यहाँ पर आज पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। यहाँ पर एक क्रिस्टल क्लियर नॉलेज के साथ में हम इसमें इसको काम किया है इस पर, और आगे हम और पढ़ेंगे कि इस लंग्स के अंदर और स्ट्रक्चर क्या होती है, एल्वियोलाई क्या है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।